Hello. Now it's live. My voice is audible, Yes, yes. but you're not audible. I'm not audible. Hello. Okay, wait. Okay. Very good morning to all. In the advanced training program, third day, and it's our fourth lecture series on chemistry module. And today's topic of our session is liquid chromatography mass spectroscopy. As we know that the liquid chromatography mass spectroscopy is an analytical chemistry technique that combines the physical separation capabilities of liquid chromatography with the mass analysis capabilities of mass spectroscopy. Coupled chromatography mass spectroscopy system are popular in chemical analysis because the individual capabilities of each technique we know that are enhanced synergistically. So I heard from many of the participants that they want to cover this LCMS topic in our session because it's really needed that the researchers are working. They might be don't know very much used to with the LCMS. Yeah, they are like used to with HPLC because each and every college has, but there is no problem with the LCMS. So with this reason, we have planned this session on LCMS, and today we have Mr. Murari Gurjar with us. Uh, without wasting time, I would like to welcome him once again. Okay. Good morning and thank you, Preeti ma'am, and also provide this platform. Right now we are going to LCMS, but some background sound are coming here. Some disturbance is there. Yeah, yeah. Right now clear. Proper my thoughts are coming. Okay. So please share me host. Then I share the screen. You are co-host. You can share the screen. It's, okay. My voice is audible. Yes, it's Hello. perfect. It's perfect. You can start. Okay. Today I'm explain liquid chromatography and mass spectrometry, and also introduce QTRAP 4500 AVIS. QTRAP is a triple quadrupole. Mass spectrometry is a different type. Single quadrupole, the time of flight, and different principle. So whole these things today I am cover with our presentation. Okay. So first of all, at the 17th century, the term introduced the mass spectrometry. So what is the mass spectrometry? To measurement of the mass our compound, interest of compound, targeted compound, and different things. So mass spectrometry is the analytical spectrometric tool primarily concerned with the
सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड स्पीसीज अकॉर्डिंग टू देयर मास। अगर किसी कंपाउंड में मतलब द प्रिंसिपल ध्यान ये है कि हम लोग ना मास को कैच करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट किसी स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक के थ्रू। Okay, so it's known as the mass spectrometry. So mass spectrometry determine the molecular weight, molecular formula, structure, isotopic incorporation and distribution, and protein sequence. So how to do? Just like when I inject our sample in mass spectrometry, so measure the molecular weight of the compound. So this is the identify with this solution our compound is present or not present. When our compound is present, what is its molecular weight? Okay. So how to determine the molecular formula? So when we go through the mass spectrometry, so we inject our sample, so we find out the one molecular formula. Then we go through the MS. Again we do the mass spectrometry analysis. So we break down our compound in the different simple segments. Sorry, ma'am, I take this call, please. Only on 5 minutes. Oh, only 2 minutes. Please, ma'am. Sorry. Hello. Yes, sir. Good morning. हाँ सर, मैं एड्रेस नहीं हूँ। राइट सर। सर एक मेरा Murari ji is in office and their samples are also coming for the COVID-19 patients. So he is quite busy. So just wait. We are waiting. And sorry for the trouble in between the session. sorry for small molecules our तो जो छोटा छोटा यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो सारे मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग कोरिलेट करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका डिटरमाइन हो जाएगा। ओके, स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे? सेम उसी टाइप से जैसे कि अगर मान के चलो कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन फर्स्ट फ्रेगमेंटेड इनटू द पेप्टाइड। तो पेप्टाइड डिफरेंट पेप्टाइड मतलब एक प्रोटीन बहुत सारी पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइड बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट मान के चलो कुछ 10,000 डाल्टन आया, तो 10,000 डाल्टन के बाद सारे पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया वो सबका अगर मिक्सअप करेंगे तो इस प्रोटीन का वेट डिटरमाइन हो जाएगा। फिर पेप्टाइड को भी स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ेंगे तो वो अमीनो एसिड लेवल पे आ जाएगा। तो ये अमीनो एसिड किस तरीका से किस केमिकल बॉन्डिंग से आके जुड़ती है इसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। आइसोटोपिक अगर ये कंपाउंड का आइसोटोप है तो वो एक प्लस या एक नेगेटिव मॉलिक्यूलर वेट में ही रहता है। So when we run our sample in mass spectrometry, so we find out the different molecular weight. So this is the isotopic pattern of this compound. Maybe 200 का 201, 202, 203 और एक पीक टाइप का दिखाई देगा, वो मैं आगे स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा। प्रोटीन सीक्वेंस जैसे प्रोटीन के बाद पेप्टाइड को फ्रेगमेंट किया तो पेप्टाइड का क्या सीक्वेंस है, ये पेप्टाइड किस तरीका से बॉन्ड है, ये सब मास स्पेक्ट्रोमेट्री से डिटरमाइन कर सकते हैं। Okay, so ionization method, electron ionization, chemical ionization, and digoxin ionization, and X-ray ionization. Electrochemical ionization में just like small molecules जिनका molecular weight बहुत छोटा होता है, just like our metabolite जो भी आते हैं वो सब electric ionization में आते हैं जिनका molecular weight 600 ALE से कम होता है। केमिकल आयोनाइजेशन थोड़ा सा मतलब केमिकल आयोनाइजेशन में क्या होता है कि लिटिल फ्रेगमेंट जो इजीली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं तो किसी केमिकल जैसे कि केमिकल एसिड या बेस की प्रेजेंस में उसको आयोनाइज करते हैं। डिसॉक्सन आयोनाइजेशन ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा मार्डी टॉक। तो मार्डी में डिसॉक्सन प्रोसेस के थ्रू एक लेजर बीम इंजेक्ट करते हैं अपने सैंपल के ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, प्रोटॉन जनरेट होता है, वो उसको रिएक्ट करेगा और ऐसे आयोनाइजेशन होगा। ये डिसॉक्सन आयोनाइजेशन हाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूलर वेट है उन वाले कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। इससे आयोनाइजेशन बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स इन सब के लिए यूज करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता क्या है? तो सॉरी
ओके, सो लुक एट देयर द इनलेट, मतलब यहाँ से हमारा इनलेट मतलब सोर्स, जहाँ से हमारा सैंपल एंटर करेगा, फिर वो आयोनाइजेशन चैम्बर में जाएगा, यहाँ पे आयन जो भी अपना कंपाउंड है वो आयन फॉर्म में जनरेट होगा। आयन फॉर्म के बाद से मास एनालाइजर में जाएगा, मास एनालाइजर उसमें डिटेक्ट करेगा कि कितना इसका मोलिकुलर वेट है, उसके बाद डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्टर उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और सिस्टम मतलब पीसी के पास जाएगा, पीसी में उसका क्रोमेटोग्राम एंड अदर इंफॉर्मेशन आएगी। तो डिटेक्टर से आयन सोर्स से लेकर डिटेक्टर तक ये सारा भी सारा यूनिट वैक्यूम के अंदर होता है। तो जो सोर्स वाला पार्ट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही होता है, पर आयन सोर्स से लेके डिटेक्टर तक सारा ये सारा पार्ट वैक्यूम में होता है। ओके, तो वैक्यूम में टर्बोमोलिकुलर मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, मतलब आयन सोर्स की, तो टर्बो फ्लो and linear flow is a different. So I don't go to the more detail in this part. So mass analyzer, different mass analyzers there, just like a time of flight, quadrupole, ion trap, and magnetic spectra, FTMS, ये सब मैं डिटेल में जाऊंगा। So mass analyzer comparison mass accuracy. So on the basis of, क्योंकि ये 4 टाइप के एनालाइजर है, हाउ टू फाइंड आउट कि हमें कौन से एनालाइजर के थ्रू जाना है, कौन से मास। तो जो एनालाइजर के बेस पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी डिफरेंट होती है। जैसे माल्टी टॉप है तो उसमें टॉप टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर है, मेरे पास क्यू ट्रैप है तो मेरे पास क्वाड्रापोल इन ट्रैप फंक्शन है एनालाइजर है। उसके बाद कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्मर, ये कुछ ऑर्बिट ट्रैप टाइप के एनालाइजर है। तो ये सारे एनालाइजर हमें कौन सा एनालाइजर यूज करना है, हाउ टू डिसाइड। तो लुक एट देयर फर्स्ट आयन ट्रैप, तो उसका जो सेंसिटिविटी होता है 100 से 1000 ppm होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का 5 से 100 ppm होता है, ऑर्बिट ट्रैप का 2 से 10 ppm होता है, FTICR का 0.1 से 1 ppm। तो वी फाइंड आउट कि हमें कितना लोअर लिमिट तक डिटेक्ट करना है, हाउ मच सेंसिटिविटी वी नीड। जैसे कि ट्रेस एलिमेंट है, जस्ट यू थिंक अबाउट दैट कि मैंने कोई ड्रग इनहेल किया, तो ड्रग इनहेल करने के बाद उसके बहुत सारे मेटाबोलाइट जनरेट होंगे। तो अब मेरे को थिंक करना है कि मतलब ये मेटाबोलाइट कौन सा एक्टिव मेटाबोलाइट है, कौन सा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाला मेटाबोलाइट है। अब आप सोचिए कि 1 mg का डोज मैंने ड्रग का लिया है, तो इन 7 लीटर ब्लड में, 7 लीटर ब्लड में उसका मेटाबोलाइट कितना होगा। जब 7 लीटर में निकालूंगा तब जाके मेरे को 5 पिकोग्राम लेवल पे उसका कॉन्सेंट्रेशन मेटाबोलाइट का फाइंड आउट होगा। पर 7 लीटर अगर इस बॉडी से मैं ब्लड नहीं निकाल सकता। फॉर द एनालिसिस वी नीड द 1 ml एंड 0.5 माइक्रोलीटर ब्लड। So when we separate out, or 0.5 भी यूज नहीं करते, only 100 microliter we take the same plasma and after they do the some extraction procedure. After the extraction procedure, we load our sample on the mass spectrometry and we find out the level of the metabolite, level of the drug. So हमें उस लेवल का सेंसिटिविटी वाला जो पिकोग्राम और पेंटोग्राम लेवल पे या 10 to the power -15 लेवल पे जो सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, उसका ऐसे टाइप का हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इसके लिए FTICR अगर 0.1 से 1 पिको मोलर तक आपको जाना है, अगर 100 से 1000 पिको मोलर तक जाना है तो आयन ट्रैप। ओके, डिटेक्टर, सिंपल डिटेक्टर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द यूवी एंड अदर्स। जैसे कि यूवी का जो होता है एम्पलीफिकेशन एंड अदर्स होता है, जैसे कि इसमें भी डिफरेंट डिटेक्ट होते हैं, माइक्रो चैनल, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। तो दिस इज नॉट अ, मतलब दिस इज द टेक्नोलॉजी पार्ट, so don't go. Okay, so this is an interesting slide. तो एक मास स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देता है, तो लुक एट देयर, दिस इज अवर मोलिकुलर आयन। जो भी मोलिकुलर आयन है या तो इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन से आयोनाइज हुआ होगा या फिर केमिकल आयोनाइजेशन से आयोनाइज हुआ होगा। तो जिससे भी ये सही है, इलेक्ट्रिक से आयोनाइजेशन से अगर आयोनाइज हुआ है तो आयोनाइज होने के बाद अगर पॉजिटिव मोड है तो एक +H जुड़ जाएगा उसके पास, अगर नेगेटिव मोड है तो एक माइनस रिड्यूस होकर उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान के चलो हमारे मोबाइल फेज में कोई एडक्ट है, जैसे कि सोडियम है या फिर मतलब जैसे सोडियम फॉस्फेट बफर हम लोग यूज करते हैं, है ना, कोई क्लोरीन का HCl का यूज करते हैं, समथिंग चीज फ्रॉम द दिस सोर्स, मतलब क्लोरीन आ रहा है या फिर अमोनिया आ रहा है या फिर सोडियम है, पोटेशियम है,
ये सारे सारे मतलब सैंपल एट द टाइम ऑफ द सैंपल प्रिपरेशन से कहीं से सोर्स आ सकता है सोडियम पोटेशियम का, या फिर मोबाइल से आ सकता है। तो ये सारे अब हम कंपाउंड के साथ एडेक्स भी बनाते हैं। तो अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में तो हमें एडेक्स का भी मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। जैसे कि जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, तो मान के चलो ये मॉलिक्यूलर वेट 80 है, तो एडेक्स अगर उसके साथ जुड़ा है तो Cl का 17 होता है, तो M प्लस 17 के बाद उसकी एक पीक आएगी। तो दिस इज द पीक ऑफ द एडेक्स पीक। ओके, आफ्टर दिस वी गो थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट जो भी है वो फ्रेगमेंट होगा। तो जो अगर 80 उसका मॉलिक्यूलर वेट है तो उससे छोटे ही आएंगे उसके फ्रेगमेंट, ठीक है। तो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन पीक। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट मे बी कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहा हो, जैसे लाइक CH3 या CH2 या फिर क्लोरीन डिसोसिएट हो रहा, तो उसके हिसाब से फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में हमें माइंड में क्या आता है कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, पर ऐसा नहीं है फ्रेगमेंटेशन में। एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। ओके, सो कंसीडर द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द CH4। तो CH4 का जो मतलब स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा, लेट्स लुक एट देयर। ओके, तो जो CH मतलब मीथेन है उसका MZ हमें मिला 16। तो दिस इज अवर पीक, मॉलिक्यूलर पीक के पास H+1। तो दिस इज अवर अनदर पीक, मे बी एडेक्स या फिर मे बी इसका आइसोटोपिक पैटर्न भी हो सकता है। उसके बाद ये कंपाउंड धीरे धीरे फ्रेगमेंट होगा। अगर इसने एक ही एच रिलीज किया होगा तो जैसे 16 के बाद 15 पे एक पीक मिलेगी, और एक और एच किया होगा तो 14 पे से 13 पे, तो ऐसे इसके फ्रेगमेंट मिलते हैं। तो लुक एट देयर रिलेटेड एविडेंस। तो जो 16 वाला वो 100% होता है, उसके बाद 17 पे जो मिला है 1.2 आइसोटोपिक पैटर्न होता है, वो ज्यादा नहीं होता है, 1.1% ही होता है। उसके बाद में 50 से 85%, तो ऐसे करके उसके फ्रेगमेंट मिलते हैं। ओके, सो लुक एट देयर। सो हाउ टू आयोनाइजेशन, जस्ट लाइक जैसे कि CH4 है, CH4 पे एक पॉजिटिव जुड़ेगा 16 होगा, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो CH3 बनेगा, CH3 से फिर CH2 स्पीसीज बनेगी, CH2 से CH स्पीसीज बनेगी, CH से H स्पीसीज बनेगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट 12 होगा। अब ये थिंक अबाउट दैट, अगर यही कंपाउंड बहुत बड़ा कंपाउंड होता और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना होता, तो हम इस थ्योरी के थ्रू जाते। फर्स्ट वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है। उसके बाद हमने उसको फ्रेगमेंट किया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 15 आया। 15 आने के बाद तो भी ठीक अबाउट, जैसे 16 में से 15, तो इसमें से क्या निकला होगा, ओके इसमें एक हाइड्रोजन निकला है, इसीलिए इसका एक मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ है। तो वी प्लॉट द अवर स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन, और आफ्टर दिस 15 हुआ, तो 15 किसका हो सकता है, इसके साथ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जुड़े होंगे। उसके बाद फिर CH2 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो लास्ट में जो सब मेन फ्रेगमेंट जो मिलेगा वो कार्बन का मिलेगा। ओके, कार्बन के साथ इतने हाइड्रोजन होंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा और इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो इस हाइपोथेसिस के थ्रू हम लोग इसका मॉलिक्यूलर बेस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। Okay, after this, you look at there the hexagon peak. So the molecular weight is the 86. So is the molecular ion. Okay, so molecular ion is the 87, क्योंकि M+1 करके मिलेगा। ओके, तो ये इसका फिर अगेन फ्रेगमेंट किया होगा, तो फ्रेगमेंट के बाद 57। अभी यू थिंक अबाउट दैट कि मतलब 86 में से क्या माइनस हुआ होगा, तो 57। तो मे बी कि CH3 CH2 CH3, तो 57। फिर उसके बाद अगर फ्रेगमेंट बनेगा तो कुछ फ्रेगमेंट हमारा आ रहा है 47 या 46 के थ्रू करीब, तो मे बी कि अगर कुछ CH2 मॉलिक्यूल निकला होगा, फिर CH3, तो ऐसे करके हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, so this is the different parts, so don't mix up these things. Just like मैंने ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक देखा, तो इसमें का एक क्रोमेटोग्राफ मेरे को मिला, तो just forget these things, think about the news, just like मतलब मेरे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल को मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट मिले, 900, 973, 989, 995, 1007, बहुत सारे मॉलिक्यूलर वेट मिले। ये मॉलिक्यूलर वेट लेने के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर आता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या MS मैथकॉट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो उन सॉफ्टवेयर में ये डाटा इनपुट किया। ये डाटा जैसे इनपुट किया, ये दिस इज द ऑनलाइन लाइब्रेरी, तो पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि ये डाटा किससे जनरेट हुआ है, जस्ट लाइक माल्डी टॉप पे, फिर उसके बाद
मतलब कहाँ से कहाँ तक हमने स्कैन किया है, फिर उसके बाद प्रोटीन आईटी क्या हो सकता है, ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद हम लोग जाएंगे लाइब्रेरी के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा डेटा किससे मैच कर रहा है. So this is the matching thing, just like a look at the Alpine lights and alkali non-mouse isoform, फिर smooth muscles, okay, स्मूथ मसल्स, नॉन मसल्स का आइसोफॉर्म. तो ये डाटा इस से मैच कर रहा है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी देगा कि 95% किसके साथ मैच कर रहा है, 80% किसके साथ. हम एक कट ऑफ रखेंगे कि 95% के बाद के सारे डेटा हमें हटा दो. तो जस्ट लाइक यू लुक एट देयर, ये ह्यूमन से कोरिलेट कर रहा है, ये रैट से कर रहा है, पर रैट से कितना परसेंटेज कर रहा है, ये डेटा अपने आप सॉफ्टवेयर में जनरेट होकर आता है. तो वहां से आइडेंटिफाई होता है कि ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सी हो सकती है. सैंपल आईडी इज द अननोन. ओके, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर में रन किया. रन करने के बाद हमें आइडेंटिफाई हुआ विद द हेल्प ऑफ द मास सर्च सिलेक्ट 858 एंट्रीज. तो मतलब जो भी जितने भी हमें मॉलिक्यूलर वेट मिले थे हमने सब सॉफ्टवेयर में एंटर किया. एंटर करने के बाद उसने डेटा दिया कि ये प्रोटीन ये हो सकती है, इतने केडीए की हो सकती है. फिर बाकी अगर आप इस विंडो को ओपन करोगे डबल क्लिक करके तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा कि इस प्रोटीन में सीक्वेंस ये होगा, ये होगा. ओके, फिर अगेन यू गो थ्रू द दिस स्लाइड. तो अगर हमें एक डाल्टन की ये प्रोटीन मिली है 16,930.2 डाल्टन की, तो उस प्रोटीन का क्या हो सकता है, ह्यूमन मायोसिन लाइट चेन एल्कली नॉन मसल आइसोफॉर्म है. उसके फिर थ्रू में इसका सीक्वेंस ये है, उसका मतलब फर्स्ट सीक्वेंस का मॉलिक्यूलर वेट ये है. तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन, प्रोटीन सीक्वेंसिंग विद द हेल्प ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग जा सकते हैं. ओके, एप्लीकेशन, pharmaceutical application, biomolecule characterization, protein and peptide, oligonucleotide, environmental analysis, pesticide and food, and forensic analysis, clinical. This is a different application. Okay, तो अभी तक जो भी मतलब एक्सप्लेनेशन था वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का था. यहाँ पे अभी एचपीएलसी का कोई रोल नहीं है. अगर सिंगल पहले क्या हुआ करता था 18th सेंचुरी में ओनली ऑन सिंगल मास स्पेक्ट्रोमेट्री आता था. अभी राइट नाउ इन फ्यूचर हाइब्रिड सिस्टम आते हैं जो एचपीएलसी से कनेक्ट होते हैं. एक ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री में दो एनालाइजर हो सकते हैं. क्वाड्रापोल भी होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा, क्वाड्रापोल भी होगा, ट्रैकिंग फंक्शन भी होगा. तो डिफरेंट फंक्शन के साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री राइट नाउ आ रहे हैं. तो इसलिए अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से एलसी कनेक्ट है तो उसका नाम हो जाता है एलसीएमएस. तो यहाँ से अभी वी गो थ्रू द एलसीएमएस. तो लुक एट देयर, एलसीएमएस कैसा होता है. फर्स्ट वी फाइंड आउट द सैंपल प्रोसेस करने के बाद एचपीएलसी में जहाँ पे वाइस होता है वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे. इंजेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिटेक्टर यूवी एंड फ्लोरोसेंट डिटेक्टर यूज नहीं करेंगे, एमएस एज अ डिटेक्टर की तरह यूज करेंगे. वो सैंपल आफ्टर दिस एमएस में जाएगा और एमएस उसका क्वांटिफिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन करके आपको पिक देगा. Okay, so component of the LCMS, first मतलब जैसे कि आपका सैंपल है वो सैंपल का प्रिपरेशन करना है, लुक एट देयर. फिर उसके बाद एचपीएलसी में लिक्विड सैंपल इंट्रोड्यूस इनटू द आयन सोर्स. तो एचपीएलसी के थ्रू आयन सोर्स में सैंपल जाएगा. सैंपल जाने के बाद फिर वो आयन सोर्स में जाएगा. सोर्स से वाले कंपार्टमेंट में Q0 एंड अदर्स होते हैं. तो वो क्या होता है, बैरियर होता है एंड फोकसिंग ऑफ आवर कंपाउंड कि सिर्फ यही कंपाउंड अंदर जाना है, उसके लिए Q0 वाला पार्ट होता है. फिर Q1, Q2, Q3 3 क्वाड्रापोल होते हैं इसमें, Q1 एंड Q2 एंड Q3. Q2 के में सेगमेंटेशन का पार्ट होता है. सेगमेंटेशन होने के बाद Q3 में जाता है कि कैसे प्रिंसिपल करता है, कैसे ट्रांसलेटर्स होता है, मैं आगे बताता हूँ. Okay, 7 step of the LCMS: dissolve analyte in the appropriate solvent, deliver the solution into the ion source. फिर किसी आयोनाइजेशन यूनिट के थ्रू आप जा सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आयोनाइजेशन, केमिकल आयोनाइजेशन, जैसा भी आपको लगे वैसे आप जा सकते हो. फिर आयन पास थ्रू द इंटरफेस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम पैटर्न गैस. फिर उसके बाद Q1 एंड Q3 में वो स्कैन होगा. स्कैन होने के बाद वो डिटेक्टर के पास जाएगा, डिटेक्ट होगा और एनालिस्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका एनालिसिस होगा. Okay, so general setup of the triple quadrupole. So look at there. First, ion production. First,
हाँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक चीज है कि अगर कंपाउंड आयोनाइज नहीं हुआ है तो मास एलसीएमएस की एनालिसिस में आयोनाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आयोनाइज नहीं हुआ है तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट कि मतलब आपका कंपाउंड कैसे कौन से सोर्स से आयोनाइजेशन होगा, एपीसीआई से, ईएसआई से, पोटेशियम आयोनाइजेशन से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है। फर्स्ट यू डू द आयोनाइजेशन, आफ्टर आयोनाइजेशन आयन प्रोडक्ट होगा, आयन प्रोडक्ट होने के बाद आयन ट्रांसपोर्टेशन होगा, आयन ट्रांसपोर्टेशन Q0 वाले पार्ट में जाएगा, Q0 के बाद फिर वो आएगा आयन फिल्टरिंग। आयन फिल्टरिंग क्या होता है कि हमने एक रेंज डिसाइड की है 200 से 1000 डाल्टन तक ही स्कैन करना है। अगर उससे एबव है या उससे बिलो है वो सारे कंपाउंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नहीं जाएंगे। ओके, फिर आयन प्रोडक्शन, उसके बाद आयन फिल्टरिंग, अगेन प्रोसेसिंग, आयन प्रोसेसिंग। Q1 में आयन प्रोसेस होगा कि मतलब ये आयन भी जाएगा, ये पोलर है, ये आयोनाइज है तो ये भी अंदर जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। Q2 में फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट होगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद जितने भी फ्रेगमेंट बने हैं Q3 अगेन स्कैन करेगा कि ये फ्रेगमेंट इसके हो सकते हैं, ये कंपाउंड है, तो ऐसे हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। आयन डिटेक्शन इज द डिटेक्टर। ओके, सो एलसीएमएस में आप सैंपल कैसे इंजेक्ट कर सकते हो? तो दिस इज विदाउट एचपीएलसी कंटिन्यूस फ्लो कर सकते हो आप, सिरिंज से इंजेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए सिरिंज से इंजेक्ट करने के लिए फ्लो रेट होता है 5 से 20 माइक्रोलीटर। ओके, आफ्टर दिस पीआर से जा सकते हो विदाउट कॉलम, यहाँ पे कॉलम अटैच नहीं रहेगा। एचपीएलसी कमांड से इंजेक्शन सीधा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएगा। इसका 1 ml पर मिनट का फ्लो रहेगा। ओके, आफ्टर दिस इज द कॉलम एचपीएलसी एलसीएमएस। तो कॉलम कनेक्ट करने के बाद प्रॉपर सेपरेशन के थ्रू आप अपना सैंपल एलसीएमएस में इंजेक्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रापोल, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालाइजर होते हैं। फर्स्ट इज द क्वाड्रापोल, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आइन ट्रैप के बाद एफटी आईसीआर। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ क्वाड्रापोल पे। क्वाड्रापोल एम बाई जेड सिलेक्शन, इसका एम बाई जेड क्या है उसका सिलेक्ट करता है। आइन विच वर प्रोड्यूस इन द सोर्स विल बी फर्दर प्रोसेस क्वाड्रापोल सी। ए क्वाड्रापोल कैन ट्रांसफर आयन, स्कैन आयन, मतलब कितने कितने एम बाई जेड वाले कंपाउंड यहाँ से आ रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द आयन, सिर्फ मेरे को 300, क्योंकि मेरे ड्रग का जो पैरासीटामोल है मतलब पैक्लीटेक्सेल है, पैक्लीटेक्सेल का मॉलिक्यूलर वेट जस्ट लाइक 425 समथिंग कुछ। तो अगर 425 का ही मेरे को डिटेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओनली 425 को वो कैच करेगा, बाकी सबको जाने देगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट स्कैन मोड में काम करता है एलसीएमएस, जैसे Q1 Q3 स्कैन, मतलब Q1 Q3 क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। SIM सिंगल आयन मॉनिटरिंग, MS2, अगर उस कंपाउंड का भी नेसेसरी की मतलब उसको दोबारा फ्रेगमेंट करना है और ज्यादा मतलब उससे फ्रेगमेंटेशन चाहिए तो MS मोड में वो बहुत सारे फ्रेगमेंट कर सकता है। मैनी टाइम्स यू हर्ड अबाउट द MS इंफिनिटी। तो एनएस इन्फिनिटी जस्ट लाइक जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन का अमीनो एसिड लेवल से भी वो कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लेवल का उसका फ्रेगमेंटेशन। तो दिस इज द एमएस इन्फिनिटी। एमआरएम मोड मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग, प्रीकर्सर एंड न्यूट्रल लॉक आयोनाइजेशन स्कैनिंग, प्रोडक्ट आयन स्कैनिंग। तो प्रोडक्ट आयन स्कैनिंग में क्या होता है, जैसे कि Q0 में मैंने डिसाइड किया था यहाँ पे कि 200 से 800 के सारे कंपाउंड अंदर जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो लुक एट देयर वन बाय वन। तो Q0, इसके बाद Q1 में सिर्फ कुछ ही कंपाउंड अंदर जा रहे हैं, जिसका मैंने मॉलिक्यूलर वेट डिसाइड किया कि मेरा पैक्लीटेक्सेल का मॉलिक्यूलर वेट 426 है, तो वो उसको ही डिटेक्ट करेगा। उसको डिटेक्ट करने के बाद फिर Q2 में उसका भी फ्रेगमेंटेशन करेगा। ऑन द फ्रेगमेंटेशन बेस पर उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट आएंगे, तो वहां पे फ्रेगमेंट बनेंगे Q3 में। Q3 से डिटेक्ट करेगा कि ये फ्रेगमेंट का क्या एम बाई जेड है ना। तो एम बाई जेड जब वो डिसाइड करेगा हाँ ये पैक्लीटेक्सेल से आ सकता है, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। एंड ऑल्सो अगर वो कंपाउंड में कुछ अनआयोनाइज्ड प्रोडक्ट भी बनेंगे जिसका न्यूट्रल लॉस बोलते हैं, तो न्यूट्रल लॉस की स्कैनिंग करके भी हम लोग उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, एमआरएन में क्या होता है,
Q1 में सिर्फ और सिर्फ Q1, मतलब ये प्रोटीन है, सिर्फ इस प्रोटीन को ही पकड़ो, बाकी सारी प्रोटीन को छोड़ दो। उस प्रोटीन के कितने फ्रेगमेंटेशन करो, और फ्रेगमेंटेशन करने के बाद फिर उसको फ्रेगमेंट, कुछ ही फ्रेगमेंट को ही Q3 में जाने दो, सारे को नहीं, सिर्फ कुछ फ्रेगमेंट को। तो दिस इज द डबल क्वांटिफिकेशन, दिस इज द हाई जस्ट लाइक मतलब बहुत सेंसिटिव मेथड के लिए जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जाते हैं तो एमआरएम मेथड के थ्रू जाते हैं। So Q1 select M+1, Q2 fragment the selected ion, Q3 monitoring only daughter ion. Only the daughter ion reaches the detector, and sensitivity of the MRM is function to how much of the daughter ion is produced. The parent ion fragmented to daughter ion is commonly referred as the transition. Okay, so qualitative and quantitative analysis using the hybrid triple quadrupole linear ion pair mass spectrometry. तो अभी मैंने बोला कि अभी जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं वो हाइब्रिड आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ ट्रिपल क्वाड्रापोल। तो मतलब पहले 18वीं सेंचुरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट आते थे सिंगल मास एनालाइजर के साथ आते हैं, जैसे इसमें क्वाड्रापोल होगा या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये सिर्फ सिंगल। तो अभी राइट नाउ इसमें तीन क्वाड्रापोल है। ओके, तो एक क्वाड्रापोल, फिर दूसरा क्वाड्रापोल Q2 क्वाड्रापोल फॉर द फ्रेगमेंटेशन का काम करेगा, फिर Q3 क्वाड्रापोल वो ट्रैपिंग का काम करेगा। ट्रैपिंग का मतलब फॉर इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द अवर कंपाउंड। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मासेस प्रेजेंट इन द सैंपल, Q1 MS जा सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही क्वाड्रापोल को यूज कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई द मासेस which are the structurally similar to the mass of the interest in the sample। तो Q2 मतलब उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ECI मतलब enhanced product time प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके द्वारा हम लोग स्ट्रक्चरली डिटरमाइन करेंगे। फर्दर कंफर्मेशन ऑफ द मासेस आइडेंटिफाई एज द स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द मास ऑफ इंटरेस्ट, तो न्यूट्रल लॉस स्कैनिंग एमआरएन के थ्रू जाएंगे। तो दिस इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन इन द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हाई स्पीड, हाई सेंसिटिविटी, हाई सेपरेशन, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? ओके, so look at the block diagram of the ML. So look at there, you have a different separation technique just like HPLC, GC, UV, UPLC, कोई भी सेपरेशन टेक्निक है, वहां से सैंपल इस इंटरफेस से मास से कनेक्ट है। इंटरफेस से सैंपल आया, सैंपल आने के बाद वो आयोनाइजेशन सोर्स वाले पार्ट में आएगा। सोर्स में आपका कोई भी आयोनाइजेशन हो सकता है, जैसे ESI वाला अडेप्टर लगा होगा, या फिर ATPI वाला अडेप्टर होगा, या फिर ATPI वाला होगा, या TSI। ESI मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनाइजेशन, ATPI मतलब एटमॉस्फेरिक केमिकल आयोनाइजेशन, ATPI मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयोनाइजेशन, ESI थर्मोस्टेट आयोनाइजेशन, ESI मतलब इलेक्ट्रो मतलब कहीं पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी प्रेजेंस में आयोनाइजेशन होगा। ATPI केमिकल मतलब कहीं पे केमिकल हुआ है, एसिड या बेस होगा, उसकी प्रेजेंस में वो आयोनाइज हो रहा होगा। फोटो मतलब कि एक मेटल की प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर लैमिनेटेड एक और प्लेट होती है जहाँ पे फोटो हाई मतलब हीट अगर जनरेट करेंगे तो वहां से फोटो जनरेट होते हैं। वो फोटोन जाके फोटो आयोनाइजेशन इसमें यूवी एक सोर्स होता है, उस यूवी से डिफरेंट फोटोन टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं। उस फोटोन से जैसे ही अपना कंपाउंड अटैक करता है तो वहां से आयोनाइजेशन होता है। TSI मतलब थर्मोस्टेट आयोनाइजेशन, मतलब एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर लैमिनेटेड प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर जैसे ही हीट करते हैं तो लैमिनेटेड प्लेट से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाके हमारे कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं और वो आयोनाइजेशन होते हैं। एक बार अगर कंपाउंड आयोनाइजेशन हो गया तो वो वैक्यूम वाले पार्ट में जाता है। दिस होल एरिया इज द वैक्यूम। तो वैक्यूम वाले पार्ट में हमारे पास डिफरेंट एनालाइजर होते हैं। फर्स्ट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, अदर वन इज द क्वाड्रापोल, फिर FRITR, फिर INTRAP। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, उसके बाद क्वाड्रापोल का क्या है, ये मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। क्वाड्रापोल मतलब 4 पोल होते हैं, उनके बीच में मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, उसके बेस पर वो स्कैनिंग करता है। क्वाड्रापोल में टाइम ऑफ फ्लाइट को डिटेक्ट करते हैं। आयन ट्रैप में क्या होता है, आयनों का ट्रैप होता है एक
फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे वो कंपाउंड वहां पे ट्रैप हो जाएगा, जिससे कि हमारे छोटे से अमाउंट वाले सैंपल में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ हमें एनालिसिस होगा। साइक्लोट्रॉन और भी ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और भी ज्यादा मतलब सेंसिटिव है। उसके बाद ये सारे के सारे एनालाइजर स्कैनिंग करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि विच MyZ वहां से जनरेट हो रहा है। ये स्कैन करने के बाद MyZ जनरेट होने के बाद फिर कंपाउंड जाता है हमारा डिटेक्शन के लिए डिटेक्टर वाले पार्ट में, और फिर उससे सॉफ्टवेयर के साथ डेटा जनरेट होता है। Okay, electricity ionization, thermostatic ionization, atmospheric pressure, chemical, mechanical extension, different type of analyzer, quadrupole, time of flight, and ion trap, Fourier transfer, ion cyclotron resonance. उसके बाद what is the MSMS? Just like you think about that कि मतलब यहाँ पे एक प्रोटीन है, प्रोटीन को हमने फ्रेगमेंट किया तो वो पेप्टाइड फॉर्म में फ्रेगमेंट हो गया। पेप्टाइड फ्रेगमेंट होने के बाद और पेप्टाइड को MS किया तो वो और छोटे छोटे पार्टों में फ्रेगमेंट होगा। अब वो पैटर्न किसी भी तरीका से हो सकता है, लेकिन ये होल यूनिट सेपरेट हो सकता है ये 2 यूनिट अलग फ्रेगमेंट हो रही है, ये 2 यूनिट अलग हो रही है, ये भी 3 यूनिट अलग, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आएंगे। ये डिफरेंट सेगमेंट के बाद फिर इसका सीक्वेंसिंग हो जाएगा। पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में ये सेगमेंटेशन हेल्प करते हैं। तो फॉर द प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन एंड पेप्टाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग MSMS फिनोमेना के थ्रू जाते हैं। तो फ्रेगमेंट पेप्टाइड फ्रेगमेंटेशन, जस्ट लुक एट दिस साइड कि फर्स्ट का मतलब 175 और ब्रेक हुआ तो 245, ऐसे मतलब ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट हो के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बनाएगी। किसी भी तरीके से वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट हो सकती है ये। तो इसके बेसिस पे सीक्वेंस समझ में आता है कि ये EFG जैसे ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, सेरीन, फिनाइलैलेनिन, तो ये किस तरीका से उसमें अटैच है। Okay, so other part is the for the LCMS. So it's ADC, antibody drug conjugation. It is a very important part in the recent time for the new drug development therapy. Just like actual में क्या होता है कि एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेशन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ हम लोग अपनी ड्रग को कॉन्जुगेट करते हैं, तो दिस इज द टारगेटेड थेरेपी होती है। जैसे कैंसर एप्लीकेशन में तो बहुत यूज होने वाली है ये। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, कास्लोजेब है, रेटुक्सिमेब है, इंट्राजूमेब है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसका क्या है, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब जो अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है, लिंकर होता है और ड्रग होता है। तो ड्रग बाइंड हुई है कि नहीं हुई है, या फिर लिंकर कहीं डी अटैच तो नहीं हो रहा है, लूजली अटैच तो नहीं है, या फिर मोनोक्लोनल एंटी वही सेम सीक्वेंस में है कि नहीं है। कहीं मोनोक्लोनल एंटी का अगर मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा तो वो उस टारगेट पे जाकर रिएक्शन नहीं करेगा। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल प्री एंड पोस्ट कॉन्जुगेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटेड इम्प्यूरिटीज, मे बी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का डिफरेंट डिफरेंट सोर्स हो सकता है। उस सोर्स से बायोलॉजिकल ड्रग में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोर्स से बहुत सारी इम्प्यूरिटीज आ सकती हैं, तो वो इम्प्यूरिटीज मे बी की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं। सिमिलरिटीज ऑफ द बायोलॉजिक्स नहीं होते हैं मेनी टाइम्स, मतलब किसी प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज होता है या किसी पेप्टाइड का सीक्वेंस चेंज होता है, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। Understanding of the amount of free and conjugated monoclonal antibody, understanding the amount of free drug and related species. So this going through with the help of the LCMS. Look at there. This is the peak. So this is a just like you look at there. See, this is the different peak 1, 2, 3, 4. So this is our peak. एंड वी फोकस ऑन दिस वाले पार्ट पे कि मतलब ये वाला फॉर द कैरेक्टराइजेशन के लिए अगर ये यूनिट मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये यूनिट का पीक मान के चलो इस वाली यूनिट का पीक ये आ रहा है, तो ये यूनिट सारे प्रोडक्ट में मतलब अभी जो फॉर्मुलेशन हुआ है या 2 साल बाद फॉर्मुलेशन हुआ है वो सारे में सिमिलर है कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो ये उसको प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगी। तो कैरेक्टराइजेशन के लिए LCMS यूज होता है। लुक एट देयर द डिफरेंट पीक एंड डिफरेंट रिटेंशन टाइम। LC-UV कैरेक्टराइजेशन, ये यूवी का डेटा है। आफ्टर दिस ओके, ड्रग लोड हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी आप देख सकते हो। DL2 लोडिंग,
उसके बाद लोडिंग के बाद okay, drug and antibody ratio. So drug and antibody ratio भी आप determine कर सकते हो with the help of the this is the some मतलब part of the technology part जब drug development होता है जो antibody को drug conjugation उनके part है. So I'm not going to the detail क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए. So look at there, this is the MS structure. So with the help of the MS structure, we look at the best like that. Best की मतलब क्या सिमिलरिटी है, कितना डिफरेंस आ रहा है. So we correlate the characterization of this thing. Conjugated peptide. So this is the मतलब पेप्टाइड मैपिंग कि जो भी मतलब पेप्टाइड से हमने अटैच किया है उन सब की सब पेप्टाइड का सिमिलर है कि नहीं है. तो मतलब दोनों सैंपल्स को हमने मतलब जो एक स्टैंडर्ड है उसको रन किया, उसके बाद फॉर्मुलेशन के बाद रन किया. तो ये सारे के सारे देखो ओवरले हो रहे हैं पेप्टाइड मैपिंग में. तो लुक एट देयर दिस वाला पार्ट कि ये वो पार्ट है जहाँ पे ड्रग हमारा कॉन्जुगेट हो रहा है. तो ये साइट उसमें है कि नहीं है. तो ये सारी चीजें. Okay, other feature in the biomarker analysis. In the biomarker analysis, just like tobacco biomarker. Okay, so lots of people using the tobacco in the form of the chewing tobacco, in the form of the smoking, different types. So what happens कि tobacco का मतलब मेटाबोलाइट होने के बाद एक मेटाबोलाइट आपके डीएनए से अडैप्ट होता है, डीएनए अडैप्ट होने के बाद कैंसर प्रोड्यूस करता है. तो लुक एट देयर निकोटीन अपने मेटाबोलाइट में टूटेगा नॉर निकोटाइन एंड नाइट्रोसाइन एंड एनएनएन डीएनए अडैप्ट और डिफरेंट मेटाबोलाइट में टूटेगा. सो वी determine the metabolite with the help of the LC-MS. जैसे कि मतलब किसी कैंसर पेशेंट को हम लोग देखेंगे कि उसका कैंसर है और साथ में वो च्यूइंग हैबिट में था, तो उसका यूरिन सैंपल लेंगे, उसके बाद एक नॉर्मल का यूरिन सैंपल लेंगे, फिर हम कोरिलेट करेंगे. अब ओके इसमें नेट्रोसामाइन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हाई है तो मे बी के तो मतलब इसका कैंसर का कॉज ये हो सकता है, इसके डीएनए के अंदर कितने एडक्ट हैं. तो ये सारी चीजें हैं. एनएनएन सैंपल पहले सैंपल प्रिपरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एसपी मेथड, फिर एसपीएमएस एनालिसिस करेंगे, फिर एनएनएल यूरिनरी निकोटीन एनएनएल में भी यहाँ पे एनएनएल में भी मेटाबोलाइट होता है, तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे और कोरिलेट करेंगे. डीएनए कितना डीएनए से एडक्ट है, कितना रिलीज फॉर्म है, ये सब एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ द एसपीएमएस. अदर मेटाबोलाइट. Okay, so processing raw LC-MS structure using the RFCS. So this is some software basis informatics, just like these are using in the bioinformatics, just like a metabolomics field, proteomics field, lipidomics, different application के लिए हम लोग यूज करते हैं. मेटाबोलाइट क्या होते हैं डेफिनेशन वाइज, डिफरेंट मेटाबोलाइट प्रोटीन ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड शुगर. उसके बाद टारगेटेड मेटाबोलाइट में मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड है, उसका एलसीएमएस मेथड डेवलप किया, स्कैनिंग किया, सेलेक्टेड रिएक्शन मॉनिटरिंग के थ्रू, सिंगल रिएक्शन मॉनिटरिंग के थ्रू देखा कि हमारा कितना पीक आ रहा है, और उसके बाद डिफरेंट सैंपल के साथ ऑप्टिमाइज करने के बाद डिफरेंट सैंपल में एनालिसिस किया कि सिर्फ वही टारगेट, जैसे टारगेट मेटाबोलाइट मतलब जैसे कि मैंने अभी निकोटीन मेटाबोलाइट की बात की थी, एनएनएन एनएनएल, दिस इज द टारगेट है, क्योंकि मुझे मालूम है ओनली मेरे को एनएनएन एनएनएल को ही डिटेक्ट करना. तो फर्स्ट वी डेवलप द मेथड with the help of the instrument and with the previous knowledge and analyze the sample in different methods, or after this is the compare between the two groups. Untargeted मतलब उसके बारे में पता ही नहीं है कौन सी मेटाबोलाइट के कारण कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, वी डोंट नो अबाउट दैट. तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट सेल्स सैंपल्स होंगे, दूसरी लाइसिस होगा, सेल्स होंगे, ब्लड होगा, बायोफ्लूइड होगा, उसका से एलसीएमएस से सैंपल एक्सट्रैक्ट करेंगे. एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्रोमेटोग्राम मेजर करेंगे, उसमें भी दो ग्रुप होंगे, एक को कैंसर होगा, एक को नहीं होगा, या फिर डिफरेंट मतलब आई एम फोकस ऑन मतलब यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट ज्यादा होता है तो मैं कैंसर पे बात कर रहा हूँ. कुछ भी टाइप का सैंपल हो सकता है कि मतलब इसका एंटी एक्टिविटी है कि नहीं है, या फिर मतलब इसमें ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज सैंपल, कुछ भी हो सकते हैं. तो उसमें कंपैरिजन करेंगे कि ये कंपाउंड इस ग्रुप में नहीं है, तो मे बी कि ये कंपाउंड के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. फिर उस कंपाउंड का पाथवे एनालिसिस करके देखेंगे, पाथवे एनालिसिस से डिटरमाइन करेंगे ओके ये पाथवे में इन्वॉल्व है, तो मे बी इसके कारण ये पाथवे ब्लॉक हो रहा है, इसकी वजह से ये डिसीज प्रोड्यूस हो रही है.
Okay, so comparison between the retention time basis, comparison between the peak interested basis, तो different टाइप से कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल मैट्रिक्स मटेरियल जैसे कि टिश्यू है तो 10 mg लेना है, सेल है तो 10⁻⁶, और बायोफ्लूइड है तो 100 माइक्रोलीटर। उसके बाद मेटाबॉलाइज एक्सट्रैक्शन करना है, इस प्रोसेस से रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब ड्राइंग करना है, ड्राइंग करने के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट इससे करना है, और उसके बाद एलसीएमएस में लोड करना है। एलसीएमएस में जैसे ही सैंपल लोड किया, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं, जीसीएमएस, एनएमआर, एलसीएमएस, यू फाइंड आउट द क्रोमेटोग्राम। आफ्टर दिस स्टैटिक अप्रोच जैसा पीसीए, हीट स्नैप, स्कैटर्ड, प्लॉटेड, अनोवा, किसी से भी चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। जैसे कि बायोलॉजिकल सैंपल आपको मिला, उसका डेटा एनालिसिस किया आपने, फिर कंपाउंड एक्सट्रैक्शन कि ये वो कंपाउंड है जिनके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यू गो थ्रू द स्टैटिक एनालिसिस कि ये कंपाउंड इस वाले ग्रुप में नहीं थे, तो इन कंपाउंड को मेरे को फोकस करना है। तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट विद द हेल्प ऑफ द एलसीएमएस आपको मिल जाएगा। फिर कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द ऑनलाइन लाइब्रेरी जिसमें जाके आप M/Z फाइंड आउट कर लोगे। तो M/Z डालोगे तो उसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ओके ये कंपाउंड का ये है। फिर उसके बाद उसको स्ट्रक्चर को पाथवे से एनालिसिस करके देखोगे कि इस पाथवे में इसका कुछ रोल है कि नहीं है, और उसका यू फाइंड आउट द टोटल फाइल। या दिस इज अ फाइल फॉर्मेट जस्ट लाइक जैसे कि थर्मो साइंटिफिक का अगर इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, एजिलेंट का है, साइंस का है, वाटर्स का है, ब्रूकर का है, तो दिस इज अ फाइल फॉर्मेट। और ये रॉ डेटा मतलब जिस फाइल में जनरेट होता है डायरेक्टरी में, रॉ फाइल में, ये डायरेक्ट ये आर सॉफ्टवेयर जो है, सबसे पहले मैं शुरुआत की अभी बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट जाके आप उसको इनबिल्ड करो और एनालिसिस हो सकते हैं। जैसे एसपीएमएस ऑनलाइन में, तो एसपीएमएस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मेटाबोलो एनालिस्ट है, एसपीएमएस सॉफ्टवेयर है, आप जाके इससे एनालिसिस कर सकते हो। और ये ब्रोकर का है, मार्कर पेड़ है, तो कुछ सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में जाके सीधा आपका रॉ फाइल इसमें इंजेक्ट करो, उसके बाद स्टैटिक एनालिसिस करके वो खुद ही दे देगा। दिस इज सम डेटाबेस इंस्टीट्यूट जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। उसके बाद आपका डेटा कैसे दिखता है, तो यू लुक एट देयर, जैसे ही आपने एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में डाला तो वो क्लाउड प्लॉट कर देगा। क्लाउड प्लॉट करने के बाद जब आप सिंगल क्लाउड के पास जाओगे, देखो कि मतलब ये सब ओवरले हो रहे हैं, है ना, एस कुछ चीजें ओवरले नहीं हो रही है, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट वाले को आप क्लिक करोगे तो मैथिंग सॉफ्टवेयर से वो ऑटोमेटिक जुड़ा है, तो उसका वो आईडी दे देगा, दिस इज द एल ग्लूटामाइन। तो एल ग्लूटामाइन का फिर आप पिक्चर प्लॉट करके या फिर मतलब उसका पाथवे एनालिसिस करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। Okay, selection of the suitable configuration of the mass spectrometry and liquid chromatography. Okay, this is very important. जैसे कि instrument LIT quadrupole ion trap, LCQ linear ion trap, फिर quadrupole, triple quadrupole, time of flight, quadrupole time of flight, QTQ, orbitrap, ये सब डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद इनमें आयन सोर्स क्या होता है, PSI माइल्डी, PSI माइल्डी, PSI माइल्डी, ESI। तो इसके बाद मास रिजोल्यूशन, अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाते हो तो लो टू मीडियम, मतलब रिजोल्यूशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन किसका मिलता है, LTQ, सबसे ज्यादा मिलता है। वेरी हाई इज द FTICR, मतलब आपको अगर प्रोटीन एनालिसिस करनी है तो उसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स होंगे, कम से कम मतलब 200 300, उन पेप्टाइड का प्रॉपर रिजोल्यूशन चाहिए, तो आपको फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाना है, तो दिस इज द सिलेक्शन। सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी मीडियम है इसकी हाई सेंसिटिविटी है, अदर से सबकी मीडियम है। डायनामिक रेंज नैरो टू वेरी वाइड रेंज, वेरी नैरो रेंज। परफॉर्मेंस एंड प्रोटोमिक, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मीडियम, लो, और ये हाई में यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन के लिए वेरी हाई, क्वांटिफिकेशन के लिए हम लोग ट्रिपल क्वाड्रपल के थ्रू जाते हैं, और वेरी लो। Okay, bioanalysis of the drug from the biological sample. So how to prepare the sample? Just look at this slide. Okay, sample preparation, analytical techniques. So different sample preparation techniques होती है. Why we need the sample preparation? क्योंकि before the sample you look at there, before the sample, after the cleaning of the sample, all peaks are separated out. Different techniques हैं, liquid extraction, protein specific and solid phase extraction. उसके बाद description about the solid phase and liquid, and this is a highly sensitive method के लिए फिर हमें वो ये SP कार्टेज के थ्रू जाना पड़ता है। This is a different detection technique, LCMS, GCMS, LCBAD, CEMS, capillary electrophoresis, mass spectrometry. Okay, so look at there,
this last slide. So look at there. We run our extract in the HPLC. So we find out that these chromatogram. After this, our LC is connected with the also मतलब उसमें UV डिटेक्टर भी था और मास डिटेक्टर दोनों कनेक्ट थे. तो LC में ये प्रोग्राम आया तो जैसे ही हम इस चीज को क्लिक करेंगे तो MS इसका मॉलिक्यूलर वेट दे देगा. तो हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आवर कंपाउंड. So this is thing. So thank you so much everyone. So sorry आज थोड़ा मेरे को जल्दी है, एक फोन आया, मेरे को अर्जेंट है, मेरी मीटिंग है ना. तो मेरे को अभी स्टॉप करना पड़ेगा. अगर यू हैव एनी क्वेरी एंड अदर्स तो आप डायरेक्टली मेरे मेल आईडी पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. फोन नंबर भी है ना. तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो. इन फ्यूचर अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और मैम है ही जो मैम मेरे को आपको जो भी इंफॉर्मेशन है या जो है तो मैं मैम को शेयर कर दूंगा. Okay, ma'am. Thank you. Okay, you need to stop the screen share. Okay. Yeah, you have any queries? If anyone is having any query, can you please write in a chat box? Else, I'll just unmute all the participants. So, yes, so you can ask one by one. All are satisfied. No queries. Dhananjay Rai. Okay, ma'am. So right now I leave. So right now I close the session. Hello. 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 Yes, you are audible. Yeah, ma'am. We close the session because I am so sorry because some meeting is there. So some person are being. Okay, ma'am. Okay, thanks, ma'am. Thanks, Mr. Muralilal Gudarji, for your wonderful session on the LCMS, and you have covered the maximum part, which is the required. And I thanks to all the participants for their time and be on like they are just on the same platform by 10 a.m. So it's really like punctuality they has followed, and I just wanted to say that in the evening we have session on 6 p.m. sharp by Dr. Kiran Jattar. So you will be with us with the same meeting ID and same password. And please we are going to cover the NMR part. So whatever the queries you have, you just come up with that, because so that it will be good. Like it should be an interactive sessions. So what we want, like if you have any of the query, can continue level present in urine can be tested by chemical test. Definitely, Sandeep ji, I will share this question to Murari ji. He has just left the exit the Zoom meeting because he has to go for some work over there. Can you please tell us the practical allocation of mass? So meanwhile, you write your question. So in the evening session, we will cover with that part also.
Thank you. Thank you so much. With this was we will meet in the evening 6 p.m. Bye bye.